Good morning, 8th class students. Welcome to social science class. Today, we are going to continue the reading of SPL chapter 7, Role of Government in the Growth of the Country, in which in previous we have discussed about the role of government in the development of India, what steps has been taken by the government since independence for the development of our country, and in which we have discussed about the steps taken in the agriculture. And in today's lecture we are going to discuss about the industries, the steps taken by government in the planning commission for the development of industries. As we know, industries are the backbone of any country's economy, because they provide job opportunity to a large number of people. They provide their goods are sale in the market, and so many reasons are there. Because of industry, the area developed. All these reasons are there that make the industry important for the development of a country's economy. So let's start. Any modern nation needs well developed industry, especially basic industry like iron and steel industry, in order to be a financially strong nation. In this process, the government set up many public sector undertaking and joint sector undertaking like National Thermal Power Corporation, Bharat Heavy Electricals means BHEL, Steel Authority of India, which is shortly known as SAIL, Gas and Oil Corporation, and Sindri Fertilizers Factories. So government, as I have discussed, कि इंडस्ट्रीज बहुत ज़रूरी हैं किसी भी नेशन के डेवलपमेंट के लिए. सो इंडिया गवर्नमेंट ने कुछ पब्लिक गवर्नमेंट सेक्टर में कुछ इंडस्ट्रीज खोली हुई हैं, और कुछ उसने कोलैबोरेशन में कॉपरेशन में प्राइवेट कंपनीज के और गवर्नमेंट ने दोनों ने मिलकर कॉपरेशन से इंडस्ट्रीज खोली हुई, जिनके में से कुछ के नेम यहाँ पर दिए गए हैं. यहाँ पर मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके साथ में शेयर करना चाहती हूँ, डैट कि इंडिया में फर्स्ट जो आयरन एंड स्टील प्लांट वाज बनाया गया था, जो कि भिलाई और बोकारो में शुरू किया गया था. उसमें उसको स्टार्ट करने में, क्योंकि इनिशियली हमारे पास में इतना पैसा नहीं था कि हम इतनी बड़ी इंडस्ट्री को अपने आप सेल्फ इसको डेवलप कर सकें, इसको स्टेब्लिश कर सकें. तो इसको स्टेब्लिश करने में रशियन गवर्नमेंट, जो उस टाइम पर यूएसएसआर के नाम से जानी जाती थी, उन्होंने हमारी बहुत हेल्प की थी इन दो इंडस्ट्रीज को इस्टेब्लिश करने में. तो ये कुछ एक इंफॉर्मेशन थी व्हाट आई थॉट दैट आई शुड शेयर विथ यू. So public sector industries were set up for the welfare of the people, as they have no profit motive. Slowly, the indigenous good grow, and Indian industries were encouraged to import in technical knowledge and enter into foreign contracts. A new governmental industrial policy was announced in 1991. With many economic reforms, competition led to an expansion in the production of consumer goods. It is found that the one third of the people in the industrial sector are employed in household industry. हाउस इंडस्ट्री, ये हाउस होल्ड इंडस्ट्री क्या होती है? वो इंडस्ट्रीज जो कि हाउस में यूज़ होने वाली चीज़ों को बनाती है, जैसे कि यूटेंसिल इंडस्ट्री हो गई, आपकी हॉजरी हो गई, आपकी सीमेंट इंडस्ट्री हो गई, ये भी हाउस होल्ड में आ जाता है. फिर आपके टिम्बर हो गया, देन आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स में आपके आ जाएगा, टीवी आ गया, फ्रिज आ गया, गैस आ गई. ऑल दीज थिंग, एसीज आर दे, ऑल दीज थिंग, these industries may are known as household industry, because the product which they produce are used in house. So that is why they are known as household industries. Road and rail links built by the British were found to be inadequate. Hence, after independence, the department was got a lot of importance. As a result, ultra modern system blended
with the traditional system was developed. We have bullock carts and rickshaw along with fighters. भाई एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस हमारी रेलवे लाइंस ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो बिछाई हुई थी वो उनका मेन मोटिव था, जो भी वो टैक्स कलेक्ट करते थे अपने इंडियन लोगों से, उन टैक्स कलेक्ट करके उसको सेंट्रल गवर्नमेंट तक पहुंचाना, हेड ऑफिस तक पहुंचाना। ये सेफली पहुंचाने के लिए ही उन्होंने ये ट्रेन्स रखी हुई थी। इसके अलावा उनका मेन कोई नहीं था। या फिर आर्मी जो थी उनको डिप्लॉय करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए उनको इसकी ज़रूरत पड़ती थी। तो ये था, उनको इंडस्ट्रियलाइजेशन से कोई लेना देना नहीं था। तो जब हमने इंडिपेंडेंस के बाद में इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में सोचना शुरू किया, तो हमें रोड और रेल की इम्पोर्टेंस का पता लगा कि भी मान लो एक इंडस्ट्री है हमारा, हाँ, जैसे हमें पता है कि जालंधर में गुड्स मार्केट है, यहाँ पे होलसेल मार्केट है गुड्स की, इसकी स्पोर्ट्स मार्केट है। तो यहाँ पे स्पोर्ट मार्केट तो है, स्पोर्ट्स के लिए मान लो हमने एक बैट ही बनाना हो तो उसके लिए लकड़ी की ज़रूरत है। जो लकड़ी गुड क्वालिटी की लकड़ी है वो कश्मीर की लकड़ी है। तो कश्मीर से जालंधर तक लकड़ी लाने के लिए क्या चाहिए हमें? ट्रांसपोर्ट चाहिए, चाहे रेल ट्रांसपोर्ट हो चाहे रोड हो, दो ट्रांसपोर्ट तो चाहिए है। तो वो लकड़ी इन जैसे जलंधर पहुंचेगी, उसको फिर वर्कर्स उस पर काम करेंगे, बैट बनाएंगे, बैट बनाने के बाद उसको मार्केट में भी बेचना है। तो जलंधर में कितने बिक जाएंगे? 10-15 एक दिन में। लेकिन वो क्या चाहते हैं? प्रॉफिट तो जाते ही हैं, तो वो नेशनल मार्केट और इंटरनेशनल मार्केट में भी बेचना चाहते हैं। तो ये सब कुछ करने के लिए उनको ट्रांसपोर्टेशन की तो ज़रूरत पड़ेगी पड़ेगी। इसके साथ में एक और चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, डेट इज़ कम्युनिकेशन। ये दोनों चीज़ों के होने पर ही कोई इंडस्ट्री डेवलप हो सकती है। तो हमने जो इंडियन गवर्नमेंट ने आफ्टर इंडिपेंडेंस इन सब चीज़ों पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया, और जिसका नतीजा आज हम अपने सामने देख रहे हैं कि देश का कोई भी ऐसा कोना नहीं है जो रोड से वेल कनेक्टेड ना हो। तो हम ये कह सकते हैं, हम ट्रेडिशनल वे ऑफ लिविंग भी है यहाँ पर, और मॉडर्न लाइफ भी हम जीते हैं। ट्रेडिशनल वे में पहले भी रिक्शा चलते थे, आज भी चलते हैं, बुलक कार्ट, घोड़ा गाड़ी आज भी हमको देखने को कहीं ना कहीं मिल जाती है। वेयर एज दूसरी जगह पे हम जेट मिग्स की बात करते हैं, जेट एयरवेज की बात, जेट एयरलाइंस की बात करते हैं हम, वो भी हमारे पास में। तो ये जो है ट्रेडिशनल और मॉडर्न को इकट्ठा करके चलने में हमारी गवर्नमेंट ने बहुत हेल्प की है। सो इसके बाद में हम करेंगे रोडवेज। क्लास 4 का ईवीएस में हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, फर्स्ट से ही पढ़ते आ रहे हैं रोडवेज कहते हैं। रोडवेज मीन्स जो रोड से मीन्स ऑफ रोड है उसको कहते हैं। लेकिन एक चीज आपको बताते हैं, इंडियन रोड्स लिंक इज द सेकेंड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क इन द वर्ल्ड आफ्टर यूएसए। यूएसए रोड लिंक्स में नंबर 1 है, उसके बाद में इंडिया आता है। तो इंडिया में हमारे जो रोड्स हैं वो डिफरेंट रोड्स हैं जो इन नामों से जाने जाते हैं। जैसे कि पहला है नेशनल हाईवेज, जो इम्पोर्टेंट सिटीज़ को हमारी कैपिटल के साथ जोड़ती है। जैसे कि नेशनल हाईवे अमृतसर से जलंधर, जलंधर से लुधियाना, जिसको हम अगर आप कभी जाते हो तो लिखा होगा हाईवे नंबर 44, इसको 44 बोला जाता है। तो ये नेशनल हाईवे जो चंडीगढ़ को दिल्ली के साथ में डायरेक्टली कनेक्ट करता है, उसको हम नेशनल हाईवे कहते हैं। उसके बाद में स्टेट हाईवेज आती हैं। स्टेट हाईवेज वो हाईवेज हैं, मेन रोड्स हैं, जो कि मेन सिटीज़ को मेन, जैसे कि आप जलंधर की ही बात करो तो जलंधर के आस पे आपका कपूरथला के साथ हम जुड़ रहे हैं, हम उधर दूसरी साइड पे बरनाला के साइड में जुड़ रहे हैं। तो ये जो सड़कें बनी हुई हैं जो मेन सिटीज़ को आपस में कनेक्ट करती हों, और उसके बाद में स्टेट की कैपिटल के साथ भी कनेक्ट करें हम लोगों को, डेट इज़ नोन एज स्टेट हाईवेज कहते हैं हम उसको। उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट रोड्स आती है। डिस्ट्रिक्ट रोड्स वो होती हैं जो एक डिस्ट्रिक्ट्स में ही कंस्ट्रक्ट की जाती है, और जो कि डिस्ट्रिक्ट हेड के साथ डायरेक्टली कनेक्ट करती है, जो आसपास के विलेजेस से निकलकर
उसको डायरेक्टली डिस्ट्रिक्ट हेड के साथ में जोड़ती है, उसको हम डिस्ट्रिक्ट रोड्स कह देते हैं। उसके बाद में कनेक्टिंग रोड्स होती हैं, जैसे कि अगर हम यहाँ से फगवाड़ा से चंडीगढ़ जाना चाहते हैं तो दो रोड आते हैं। एक चंडीगढ़ बाईपास आ जाता है, जिसे हम बाइफिकेट करके डायरेक्टली हम लोग चंडीगढ़ के लिए निकल जाते हैं। एक रास्ता आता है वाया फगवाड़ा हुआ निकलते हुए, तो वो जो आपका बाईपास वाला सड़क है वो कनेक्टिंग रोड है, क्योंकि अल्टीमेटली वो भी जाकर उसी रोड पे मिलेगा जो आप फगवाड़ा क्रॉस करके जोड़ मिलेगा। तो ये इसको हम ऐसी सड़कों को हम कनेक्टिंग करते हैं, जो कनेक्ट करती है एक सड़क को दूसरी सड़क के साथ कनेक्ट करती है, उसको हम कनेक्टिंग रोड कहते हैं। ये एक विलेज को दूसरे विलेज के साथ कनेक्ट करना भी हो सकता है, एक सिटी को दूसरे स्टेट सिटी के साथ भी कनेक्ट करना हो सकता है। नेक्स्ट इज नेशनल NHI, means National Highway Authority of India, was set up with a desire of link to all corners of India. The NH7 is the largest in of all that runs between Varanasi and Kanyakumari, covering distance of 2,369 kilometers. The Golden Quadrilaters is another major project which has 4-lane or 6-lane expressway highways connecting 4 metro cities: Mumbai, Delhi, Mumbai, Kolkata, Chennai. तो NHAI ये आपको मेन हाईवेज पे लिखा हुआ नज़र आता है। जब वो हाईवेज पे आपको किसी सिटी के बड़े बड़े बोर्ड लगे हों तो उस पे आपको NHAI लिखा होगा, जिसका मतलब होता है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये हमारी रोड्स बनाने की, जो नेशनल हाईवे बनाने की है काम, ये अथॉरिटी देखती है। और इस यही अथॉरिटी का तो ये 4 लेन से 6 लेन, कहीं पर 8 लेन भी बनी हुई हैं, ये लेन्स की सड़कें बनाई जाती ताकि ये स्पीड में काम हो सके, लोग जल्दी से एक अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच सके। हाईवेज हैं तो लोगों तेजी से चलते होंगे, तो ये चौड़ी सड़कें बनाते हैं। और इनका गॉडल एक आता है, सबसे लंबी जो सड़क इंडिया की है दैट इज वाराणसी से चलकर जो कन्याकुमारी में जाती है, जिसकी टोटल लेंथ इज 2369 किलोमीटर्स की है। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट रोड जो है, जिसको गोल्डन क्वाड्रिलेटर कहते हैं, जो इंडिया के 4 मेट्रोपॉलिटन सिटीज वो होते हैं जो इंडिया के बहुत बड़े सिटीज हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सिटीज हैं। As Delhi is the capital of India, so that is why it is very important. Calcutta is a port city, and it has its own historical importance. So due to that, Kolkata is there. Then afterward, Madras south के साथ में आ जाता है. It is a port city and as well as religious center भी आ जाता है. That is why Madras is there. Then उसके बाद में Mumbai, as we all know, our economic capital of India is Mumbai. So Mumbai is there, metropolitan. So all this golden quadrilateral connects all these 4 cities. That road is known as golden quadrilaters. So in next lecture we are going to read about the other topics of this chapter. Thank you very much. Have a nice day. Stay home, stay healthy, and happy Lodi to all of you.